ذرا سوچئے، ہم انسان اس زمین پر کہاں سے آئے؟ یہ دھرتی، سورج، چاند، یہ ندیاں، سمندر، بڑے بڑے پہاڑ اور گھنے جنگل کیسے وجود میں آئے؟ سردی، گرمی اور بارشیں سب کیسے ہوتی ہیں؟ انسانوں کی ترقی کیسے ہوئی اور زبانیں وجود میں کیسے آئیں؟ اگر آپ ان سب سوالوں کے جواب نہیں جانتے تو آئیے زمین کے 4.6 بلین ایئرز یعنی 460 کروڑ سالوں کے سفر کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انفو ویب۔ آج جہاں ہمارا سولر سسٹم ہے وہاں پر آج سے 4.6 بلین ایئرز پہلے ڈسٹ اور گیسز کے بادل ہوا کرتے تھے جسے سولر نیبولا کہا جاتا ہے، اور اس سے کچھ ہی دور ایک ستارہ ہوا کرتا تھا۔ وقت کے گزرتے ہی ستارے کی عمر ختم ہوئی اور ستارہ پھٹ گیا، جس سے ایک سپر نووا دھماکہ ہوا۔ یہ عمل یونیورس میں ہر وقت ہوتا رہتا ہے، کہیں ایک ستارہ اپنی عمر گزار کے ختم ہوتا ہے تو کہیں ایک نیا ستارہ وجود میں آتا ہے۔ دھماکے سے سولر نیبولا کے سینٹر میں مٹیریل اکٹھا ہونے لگا۔ ٹیمپریچر اور پریشر کے بڑھنے کی وجہ سے گریویٹیشنل کولیپس ہونے لگا اور ہائیڈروجن کے ایٹمز زیادہ تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ اس کولیپس کے نتیجے میں ایک پیرو اسٹار بن گیا جسے بیبی اسٹار کہا جاتا ہے۔ جب پیرو اسٹار کا سائز اور ڈینسٹی بڑھ گئے اور ٹیمپریچر اتنا ہائی ہو گیا کہ نیوکلیئر فیوژن پروسیس شروع ہو گیا، تب پیرو اسٹار کے اندر کا مٹیریل گریویٹیشنل اٹریکشن کے اثر میں اکٹھا ہو گیا اور نیوکلیئر فیوژن اسٹیبل ہو گیا۔ تب ایک میچور اسٹار کا جنم ہوا جو ہمارے سولر سسٹم کا مرکز ہے، یعنی ہمارا سورج۔ سورج نے سولر نیبولا کا 99% سے زیادہ میٹر کا حصہ گھیر لیا اور بچا ہوا میٹر سورج کے گرد ایک پروٹو پلینیٹری ڈسک کی صورت میں گھومنے لگا۔ اس ڈسک کے اندر مختلف سائز کے ڈسٹ اور گیسز کے پارٹیکل سورج کے گرد گھومنے لگے، جس سے وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے اور چپکتے رہے۔ بالآخر ان میں گریوٹی پیدا ہو گئی، وہ اپنے قریبی ڈسٹ اور گیسز کے پارٹیکل کو اپنی طرف کھینچنے لگے، اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں میں تبدیل ہوتے گئے اور پھر بڑے سیاروں میں بدل گئے، جن میں سے ایک ہماری دھرتی بھی ہے۔ لیکن اس وقت تو ایک یونی سیلولر آرگنزم کا بھی وجود نہیں تھا۔ تو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انسان کو اس چیز کا علم کیسے ہوا؟ اس کا جواب میٹیورائٹ سے ملتا ہے جو زمین پر بڑی مقدار میں گر چکے ہیں۔ سائنسدان ان میٹیورائٹس کی کاربن ڈیٹنگ کر کے میٹیورائٹس اور زمین کی فارمیشن اور عمر کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اس طرح کے سائنٹیفک میتھڈ سے ہم زمین اور زندگی کی تاریخ کو سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں، جو ہماری ایولیوشنری جرنی کا حصہ ہے۔ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق سولر سسٹم کے بننے کے 60 سے 175 ملین ایئرز کے بعد زمین پر ایک جوائنٹ امپیکٹ ہوا جس سے ہمارا چاند وجود میں آیا۔ لیکن ان میں بہت سی تھیوریز جنم لیتی ہیں، جیسے کہ فیوژن تھیوری، جس میں سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ زمین کا ایک بڑا حصہ جو زمین سے ٹوٹ کے الگ ہوا اور چاند بن گیا۔ دوسری کیپچر تھیوری، چاند سولر سسٹم میں کسی اور جگہ بنا اور زمین کی کشش ثقل کے ذریعے اس کے آربٹ میں آیا۔ تیسری کو فارمیشن، زمین اور چاند ایک ہی وقت میں پروٹو پلینیٹری ڈسک سے بنے تھے۔ لیکن کافی ریسرچ کے بعد زیادہ اثر رکھنے والی تھیوری یہ ہے کہ ارتھ اور مارس کے بیچ میں ایک چھوٹا سیارہ ہوا کرتا تھا جسے تھیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ارتھ کی گریویٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے تھیا ارتھ کے قریب آتا گیا، بالآخر دونوں کے بیچ میں ایک زوردار ٹکراؤ ہوا۔ ارتھ کی زیادہ گریویٹی ہونے کی وجہ سے ارتھ کا سائز بڑھ گیا اور بچا ہوا مٹیریل ارتھ کے گرد ایک پروٹو پلینیٹری ڈسک کی فارم میں گھومنے لگا، اور گریویٹیشنل فورس پیدا ہونے کی وجہ سے وہ ایک چاند کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ زمین اپنے شروعاتی مراحل میں ایک مولٹن اسٹیٹ میں تھی، یعنی یہ بالکل گرم اور لیکوڈ فارم میں تھی، اور ٹیمپریچر 2000 ڈگری سیلسیس تھا۔ پوری زمین کو گرم لاوے کے سمندر نے گھیرا ہوا تھا جسے میگما اوشن کہا جاتا ہے، اور زمین اپنے محور میں تیزی سے گھوم رہی تھی جس کا ایک دن 6 گھنٹوں کے برابر ہوا کرتا تھا۔ وقت گزرتے ہی زمین ٹھنڈی ہوتی گئی اور زمین کا انٹرنل پریشر کم ہوا تو سرفیس پر جو میگما اوشن تھا وہ زمین کے مرکز میں جمع ہوتا گیا، اور اسی پروسیس سے زمین کی کورس بننے لگی، اور اس کولنگ پروسیس نے زمین کے سرفیس پر ایک سولڈ
क्रस्ट बनाया। जमीन के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के डिके होते रहे जो हीट प्रोड्यूस करते रहे और इस हीट ने जमीन को अंदर से गर्म रखा और इस हीट ने जमीन के मेंटल में कन्विक्शन करंट्स बनाए जो गर्म मोल्टेन रॉक को ऊपर पुश करते और ठंडी रॉक को नीचे ले जाते। इन कन्विक्शन करंट्स ने क्रस्ट को मूव करना शुरू कर दिया। इस मूवमेंट की वजह से क्रस्ट में क्रैक्स और फ्रैक्चर्स बन गए। आहिस्ता आहिस्ता ये मूवमेंट और फ्रेगमेंटेशन क्रस्ट को अलग अलग ब्लॉक्स में तोड़ दिया जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इस कन्विक्शन प्रोसेस में एक और फैक्टर होता है जिसे कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। ये फोर्स घूमती हुई जमीन के कोर के मेटल पर एक तरह का ट्विस्टिंग इफेक्ट डालती है जिसे एक डायनामो इफेक्ट क्रिएट होता है। डायनामो इफेक्ट की वजह से गर्म और लिक्विड मेटल की मूवमेंट एक इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करती है और इस प्रोसेस से हमारे जमीन की मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हुई। आज से 3.9 बिलियन ईयर्स पहले सोलर सिस्टम की अर्ली हिस्ट्री में चांद पर एक बड़ा सीरीज ऑफ इम्पैक्ट और वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही थी जिसमें पूरे सरफेस पर एक तेजी से कैटाक्लिज्म हो रहा था। बहुत सारे एस्टेरॉयड और मेटेओराइट्स चांद पर गिर रहे थे और वोल्केनिक एक्टिविटी भी ज्यादा हो रही थी जिसे ल्यूनर कैटाक्लिज्म कहा जाता है। इस इवेंट से पहले चांद का सरफेस पुरसुकून था और एक होमोजीनियस क्रस्ट था, लेकिन ल्यूनर कैटाक्लिज्म के बाद चांद के सरफेस पर छोटे छोटे क्रेटर्स और बेसन बन गए जो आज भी टेलीस्कोप के जरिए दिखते हैं। इस कैटाक्लिज्मिक पीरियड के दौरान चांद के सरफेस पर बहुत सी वोल्केनिक एक्टिविटी के साइन भी हैं जिसमें बेसाल्टिक लावा फ्लोज और वोल्केनिक डिपॉजिट्स शामिल हैं। ये इवेंट सिर्फ चांद पर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी और पूरे सोलर सिस्टम में हो रहा था। जब अपोलो मिशन चांद पर गया तो 380 किलोग्राम मून रॉक्स लेकर जमीन पर आया। जब उसकी कार्बन डेटिंग की गई तो साइंसदानों को पता चला कि ये 3.9 बिलियन ईयर्स पुराने हैं और वही असरात जमीन के पत्थरों पर भी मिले जिन्हें हम एस्टेरॉयड और मेटेओराइट्स कहते हैं जो एस्टेरॉयड बेल्ट से आए थे। इनमें बहुत सारे मेटल, मिनरल्स और एलिमेंट्स शामिल थे। साइंसदानों का अंदाजा है कि सोलर सिस्टम के शुरुआती मरहल में 20 प्लैनेट सूरज के गिर्द चक्कर लगाते थे, लेकिन आपस में टकराव की वजह से बाकी के प्लैनेट्स खत्म होते गए और तब उनके ऑर्बिट भी आज की तरह स्टेबल नहीं थे और इसी अनस्टेबिलिटी की वजह से एस्टेरॉयड बेल्ट से पत्थर निकलकर प्लैनेट्स पर बॉम्बारमेंट्स करते रहे। इन्हीं बॉम्बारमेंट की वजह से आज जमीन पर जिंदगी मौजूद है क्योंकि इनमें बहुत सारे मेटल्स, मिनरल्स, एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, नमकियात और पानी शामिल था। लेकिन उनमें इतना पानी नहीं था जो आज जमीन पर मौजूद है, यानी 70% ऑफ वाटर, जो कि जिंदगी के वजूद का मेन जरिया है। फिर ये पानी आया कहाँ से? रिसर्चर्स के अंदाजे के मुताबिक हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री पर मौजूद और नेपच्यून के ऑर्बिट से थोड़ा ही दूर एक फ्रोजन कॉमेट्स की डिस्क है जिसे काइपर बेल्ट कहा जाता है। दरअसल ये पानी वहां से आया जब एस्टेरॉयड्स और मेटेओराइट्स की बॉम्बारमेंट हो रही थी। उसी दौरान फ्रोजन कॉमेट्स भी जमीन पर बरसने लगे। जमीन पर गर्म लावा होने की वजह से उसका एटमॉस्फेयर भी बहुत गर्म था, जिसकी वजह से कॉमेट्स जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही पिघलना शुरू हुए और बारिश की सूरत में पानी बरसना शुरू हुआ, जिससे जमीन ठंडी होती गई और पानी के समुंदर वजूद में आए। पानी की वजह से सरफेस काफी ठंडा हो चुका था और जमीन का कोर गर्म होने की वजह से जमीन के इंटरनल स्ट्रक्चर में काफी प्रेशर बन गया, जिसकी वजह से वोल्केनो एक्टिव होकर इरप्ट होने लगे और ये इरप्शन मोल्टेन मैग्मा और गैसेस को जमीन की सतह पर लाते थे, जिससे जमीन की शक्ल और बनावट में तब्दीलियां होने लगी। इरप्शन से निकलने वाली गैसेस ने जमीन के एटमॉस्फेयर को बनाने में भी अहम किरदार अदा किया। ये गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया जमीन के एटमॉस्फेयर का हिस्सा थीं। ये गैसेस इनिशियली हार्म थीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी केमिस्ट्री बदलती गई और जमीन के एनवायरनमेंट को लाइफ सपोर्टिंग बनाया।
अल्फ्रेड वेगनर ने सबसे पहले थ्योरी दी थी कि सब कॉन्टिनेंट एक बार एक सुपर कॉन्टिनेंट यानी पेंजिया का हिस्सा थे। ये सुपर कॉन्टिनेंट मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले टूटकर अलग अलग कॉन्टिनेंट में तब्दील हो गया था। इस थ्योरी को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। मेंटल में कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मूव होकर एक दूसरे से टकराना शुरू हुई। इस प्रोसेस को कन्वर्जेंस प्रोसेस कहा जाता है और ये प्रोसेस इतना सुस्त है कि इसमें हजारों या लाखों साल लग जाते हैं। इस टकराव के जरिए नए लैंडफॉर्म्स और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हुए और बड़े बड़े पहाड़ जैसे कि एंडीज माउंटेन्स साउथ अमेरिकन प्लेट और नास्का प्लेट के टकराने से बनी, हिमालय और दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट इंडियन प्लेट और यूरोशियन प्लेट के टकराने से वजूद में आए और इसी दौरान जमीन जिंदगी को जन्म देने के काबिल बन चुकी थी। आज से लगभग 2.4 बिलियन ईयर्स पहले जमीन के एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का इब्तिदा क्लोरोप्लास्ट माइक्रोब्स यानी साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अल्जाई से हुई। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के जरिए यानी सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन बनाते थे। ये सिलसिला काफी सालों तक चलता रहा, जिससे ऑक्सीजन का लेवल जमीन पर बढ़ गया, ओजोन लेयर भी बनना शुरू हुई और एटमॉस्फेयर भी स्टेबल होता गया। और तब आया पहला आइस एज जो होरोनियन ग्लेशिएशन के नाम से जाना जाता है। 20वीं सदी के शुरू में मिलोटिन मिलानकोविच एक साइबेरियन मैथमेटिशियन और इंजीनियर थे जो अर्थ के क्लाइमेट चेंज की थ्योरीज डेवलप करने में माहिर रहे और उन्होंने एक थ्योरी दी, मिलानकोविच साइकिल। ये थ्योरी अर्थ के ऑर्बिटल और एक्सियल वेरिएशंस को डिस्क्राइब करती हैं जो सूरज की रोशनी की डिस्ट्रीब्यूशन पर असर डालती हैं और इनमें 3 मुख्तलिफ चेंजेस शामिल हैं। पहला एक्सेंट्रिसिटी जो अर्थ के ऑर्बिट की चेंजेस को कहते हैं, जैसे कि अर्थ का ऑर्बिट यानी सूरज के गिर्द घूमने का चक्कर एलिप्टिकल यानी ओवल या सर्किल हो जाता है। दूसरा ऑब्लिक्विटी जो अर्थ के एक्सिस के टिल्ट को कहते हैं और हमारी जमीन अपने एक्सिस पर 23 डिग्री टिल्ट है और इसी की वजह से मौसम तब्दील होते हैं। यह टिल्ट 22.1 डिग्री से 24.5 डिग्री के बीच में हर 41,000 साल में वेरी करता है, जो सीजनल वेरिएशंस और क्लाइमेट पर असर डालता है। तीसरा प्रिसिशन जो अर्थ के एक्सिस के कोन की मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है और ये साइकिल लगभग हर 26,000 साल में कंप्लीट होता है। प्रिसिशन से सीजन की टाइमिंग और इंटेंसिटी चेंज होती है और जमीन के टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट और उनके टकराव भी क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं या माउंटेन्स फॉर्म होते हैं तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स और ओशन करंट्स में तब्दीलियां आती हैं जो क्लाइमेट को चेंज कर सकती हैं। ये सारे साइकिल्स मिलकर जमीन पर लंबी मुद्दत के क्लाइमेट पैटर्न्स और ग्लेशियल से इंटरग्लेशियल पीरियड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला आइस एज अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री का एक बहुत पुराना और सिग्निफिकेंट पीरियड था। इस दौरान ग्लोबल टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर गया था, जिसकी वजह से जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढक गया था। आइस शीट्स और ग्लेशियर इक्वेटर तक पहुंचकर जमीन के बहुत बड़े हिस्सों को कवर कर लिया था और ये दौर स्नोबॉल अर्थ के नाम से जाना जाता है। ये एक्सट्रीम कूलिंग, वोल्केनिक एक्टिविटी, एटमॉस्फेरिक चेंजेस और रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा कमी हुई थी। होरोनियन ग्लेशिएशन ने जिंदगी के एवोल्यूशनरी प्रोसेस को डीपली इफेक्ट किया। ऑक्सीजनेशन इवेंट्स और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स के एवोल्यूशन को डीपली इन्फ्लुएंस किया। आइस एज के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से पानी में डिसॉल्व हो गई और सूरज की रोशनी कम होने से छोटे छोटे माइक्रोब्स खत्म होते गए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पर मबनी थे। ये सिलसिला काफी सालों तक चलता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता से आइस एज खत्म होता गया और जमीन का टेम्परेचर बढ़ने लगा। नए माइक्रोब्स और यूनिसेल्युलर्स ने पानी में जन्म लिया जो ऑक्सीजन पर मबनी थे। इस दौरान पानी में पौधों का निकलना भी शुरू हो गया जो उन माइक्रोब्स की खुराक का जरिया भी है। देखते ही देखते जमीन पर हरियाली होती गई
गई और घने जंगल्स बनने लगे और धरती पर बड़े बड़े दरख्त निकल आए। साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक उस दौर में दरख्तों की लंबाई 100 फुट होती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता से जिंदगी पानी से निकलकर खुश्की पर आना शुरू हुई। टिकटॉलिक पानी से खुश्की पर आने वाला पहला जानवर था। ये लगभग 375 मिलियन साल पहले डेवोनियन पीरियड में जिंदा था। ये ट्रांजिशनरी स्पीशीज था जो फिश और अर्ली टेट्रापोड्स के दरमियान का लिंक था और पानी और खुश्की पर जीने की सलाहियत रखता था। टिकटॉलिक के खास फीचर्स में लिबर्ड फिन्स, फ्लैट स्किल, मूवेबल नेक और स्ट्रॉन्ग ग्रिप्स शामिल थे जो उसे खुश्की पर चलने और सपोर्ट करने में मदद करते थे। टिकटॉलिक को 2004 में आर्कटिक कनाडा के एलिस मेयर आइलैंड से डिस्कवर किया गया था और ये डिस्कवरी लैंड वर्टिब्रेट्स के एवोल्यूशन के एक इम्पोर्टेंट स्टेज को रिप्रेजेंट करती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी खुश्की पर फैलती गई, जैसे कि जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, सांप और डायनासोर्स जो तकरीबन 10 करोड़ साल से भी ज्यादा अरसे तक धरती पर हुकूमत करते रहे। 66 मिलियन साल पहले तकरीबन 10 किलोमीटर जितने बड़े एस्टेरॉयड ने मेक्सिको पर इम्पैक्ट किया, जिसे क्रेटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट कहते हैं, जिसने शिक्सलब क्रेटर बनाया और डायनासोर्स के खत्म करने वाली तबाही मचाई। इस इम्पैक्ट से एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ जिसने तकरीबन पूरी जमीन को तबाह कर दिया और बिलियंस ऑफ टन सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज किया और ग्लोबल क्लाइमेट ड्रामेटिक चेंज हुआ। वाइल्ड फायर, मैसिव सुनामी और ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस और एटमॉस्फेयर में डस्ट और डेब्रिस फैल गई, जिससे सनलाइट ब्लॉक हो गई और फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब हुआ जो फूड चेन कोलैप्स का सबब बना। साथ ही डेकन ट्रैप्स में वोल्केनिक इरप्शंस ने एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जो एसिड रेन और क्लाइमेट चेंज का सबब बने। इन सब ने मिलकर टेम्परेचर में सीवियर चेंजेस ला दिए, जिससे इकोसिस्टम्स डिस्टर्ब हुआ और डायनासोर्स को अडॉप्ट होने का टाइम न मिला। सिग्निफिकेंट सी लेवल चेंजेस भी हुए थे जो कोस्टल हैबिटेट्स और इकोसिस्टम्स को डिस्टर्ब कर गए। इन मल्टीपल कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स ने मिलकर डायनासोर्स और उनसे जुड़ी कई स्पीशीज को खत्म किया, लेकिन बहुत से परिंदों की नस्लें और जमीन के अंदर रहने वाले स्पीशीज और बहुत ही कम डायनासोर्स की नस्लें इस इम्पैक्ट को सरवाइव कर गई और आज भी जिंदा हैं। 1859 में पब्लिश की गई चार्ल्स डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, जो स्पीशीज को डिटेल्स में जाहिर करती है, और 1871 में द डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स। इस किताब में डार्विन ने स्पेशली ह्यूमन एवोल्यूशन और सेक्सुअल सिलेक्शन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया और साइंसदानों की स्टडीज और फॉसिल के कार्बन डेटिंग से सबूत मिलता है कि इंसान का वजूद एक लंबे एवोल्यूशन के सिलसिले का नतीजा है जो कई लाखों सालों तक मुख्तलिफ एनिमल से गुजरता हुआ इंसानी नस्ल तक पहुंचा। ये सिलसिला लगभग 55 से 65 मिलियन साल पहले पिरामिड्स से शुरू होता है, जिसमें मोंकीज और एपिस शामिल हैं। फिर लगभग 15 से 20 मिलियन साल पहले बड़े एपिस जो होमिनिडीज कहलाते हैं और चिंपैंजी, गोरिल्ला और इंसान के कॉमन एंसेस्टर का वजूद हुआ। इंसान के एवोल्यूशनरी जर्नी में कई सिग्निफिकेंट स्टेजेस और स्पीशीज आती हैं। हर एक स्पीशीज ने हमारे आज के रूप को शेप देने में कुछ न कुछ किरदार अदा किया। सैहेलैंथ्रोपोस टिचेडेंसिस और एस्ट्रालोपिथेकस जैसे पुराने एंसेस्टर से लेकर होमोजीनियस के डिफरेंट मेंबर्स तक और आखिर में होमो सैपियंस तक हर एक एवोल्यूशनरी स्टेप हमें हमारे पास्ट के बारे में इम्पोर्टेंट इंसाइट्स देता है। होमो सैपियंस से पहले भी कुछ इंसानी स्पीशीज जैसे होमो इरेक्टस और नेंडरथल्स धरती पर रहती थी। लगभग 60,000 से 80,000 साल पहले होमो सैपियंस अफ्रीका से माइग्रेट होकर मिडल ईस्ट, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में फैले। ये माइग्रेशन प्रोसेस कई हजारों सालों में मुकम्मल हुआ और होमो सैपियंस दुनिया भर में फैल गए। ये एवोल्यूशन जेनेटिक म्यूटेशन, एनवायरमेंटल चेंजेस और नेचुरल सिलेक्शन के जरिए एक बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। शिकार और खाना इकट्ठा करना इंसानी जिंदगी का पहला मरहला था।
انسانوں نے پہلے شکار اور پھل اکٹھا کر کے اپنی غذا حاصل کی۔ انہوں نے مختلف ٹولز بنائے جیسے پتھر اور ہڈی کے ہتھیار جو شکار اور غذا اکٹھا کرنے میں مددگار ثابت ہوئے۔ لگ بھگ 15 سے 20 لاکھ سال پہلے ہومو ایرکٹس نے آگ کا استعمال شروع کر دیا تھا جو غذا پکانے، روشنی اور سرد موسم سے حفاظت میں اہم کردار ادا کرتا تھا۔ ہومو سیپینس نے اپنی ذہنی صلاحیت کو بڑھایا، ماڈرن ہیومن میں تبدیل ہوتے گئے اور ٹولز بنانے کی مہارت کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنایا۔ لینگویجز اور کمیونیکیشن اسکلز ڈیولپ کیے جو ان کے سوشل اسٹرکچر اور نالج ٹرانسفر میں مددگار ہوئے۔ کیو پینٹنگز اور مختلف آرٹ فارم سے انسان نے اپنی کریٹیوٹی کا اظہار کیا۔ لگ بھگ 10,000 سال پہلے نیولوتھک ریولیوشن کے دوران انسان نے ایگریکلچر شروع کی اور سیٹلڈ سوسائٹیز بنائی۔ پھر 5,000 سال پہلے انسان نے مختلف سویلائزیشن بنائی جیسے میسوپوٹیمیا، ایجپٹ، انڈس ویلی اور چائنا۔ قدیم زمانوں سے لے کر انسانوں نے اپنی عقل و دانش اور ہمت کے ذریعے قدرت کے راز سمجھے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کیا۔ ہماری کہانی یہاں تک ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے ایک نئے باب کی شروعات ہوتی ہے۔ ہر سورج کا غروب ہونا ایک نئے دن کے طلوع ہونے کا اشارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ داستان بھی ایک نئے مستقبل کی طرف اشارہ کرتی ہے جہاں ہم قدرت کے ساتھ مل کر ایک خوبصورت اور پائیدار زندگی کا قیام کریں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سائنس اور ہسٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔